ST 334 SSC pre-level. Here we go with the question number 76 of English section. My name is Rudresh Pandey and we are the Radix team. The question is on synonym. Which one happens to be the most suitable meaning to the given word credulous? The root is credu. Cred, that is about belief. LOUS connotes the meaning to be somebody who easily believes, somebody who has better temperament, does not develop any ifs and buts about anything or anybody, is called a seedha sadha person, gullible, naive and very simple sort of a guy who never happens to develop any disbelief on others, जो आसानी से चुपचाप दूसरों पर यकीन कर लेता है. Therefore our best answer is D, gullible. That is yes man. That is simpleton. E, that is naive. Silly will not suit the meaning because the word connotation of silly is inept. जिसके अंदर कल्पना शक्ति में कोई खाता ही नहीं खुला, जिसका दिमाग सही जगह पर नहीं है, जो अनइमेजिनेटिव है. Somebody is quite unimaginative, silly, they say foolish. An innocent person is somebody who is guiltless, who has no involvement in any sinister activity, that is uninvolved. Funny, that is comic. Somebody who is silly enough to develop amusing character sketch in his in his presentability, or in his, say, somebody who has quite humorous and fun creating kind of a temperament, nature, is called comic. जो so far अपने आप में humor developing होता है. So we can take the word humorous, absurd भी होता है इसका right use. Next, the next question is to choose the opposite of the word reassure. Reassure, किसी को पूरी तरह से ढाढ़स बंधाना, फिर से एक वादे का रिपीटेशन करके, वादे का रिटरेशन करके किसी को अश्योर करना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा. That should mean kind of encourage. And that should mean induce to do something. Buck up. तो हमारे सामने अच्छा एंटोनिम सीधे सीधे दिख रहा है, डिस्करेज, डिटर. इसलिए हमारा राइट यूज यहां पर हो जाएगा एज एन आंसर डी ऑप्शन करेक्ट होगा. कंफर्ट, दैट इज सोलास,
इसका दूर दूर तक आपस में कोई लेना देना नहीं इस वर्ड के एंटोनिम या सिनोनिम में। इंस्पायर रियश्योर का सिनोनिम हो जाएगा। ओके, इंड्यूस, एंकरेज, बैकअप, सपोर्ट, withstand, stimulate. And console will be altogether a different word. Console means to give comfort to somebody, to give words of comfort. So far ये मीनिंग हो जाएगी इस वर्ड की। Next, the next question is to find correctly spelled word. The correct spelling of the word defiance is particularly D. Defiance. Defiance is strong disobedience. Overrule. Reject the orders of somebody. Refute the orders of somebody. किसी को डिसरिगार्ड कर देना, किसी बात को या किसी के अवहेलना कर देना। Shun the orders of somebody. Too great a variety of studies. ये डिटेक्शन ऑफ एरर के क्वेश्चन है। टू ग्रेट ये का यूज यहां ध्यान दीजिए। अ वैरायटी ऑफ स्टडीज, ये स्टडीज हमारा सब्जेक्ट नहीं है। हमारी पूरी स्टडीज का एक वैरायटी, गैमट ऑफ वैरायटी, सिंगुलर नंबर होगा, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होने के नाते डिस्ट्रैक्ट एस लेगा। डिस्ट्रैक्ट्स सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर नंबर वाला वर्ब। तो ये होने के कारण हमने डिस्ट्रैक्ट्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये शुरू का ज्ञान है, एकदम बेसिक ज्ञान है इंग्लिश लैंग्वेज का। अगर आपका सब्जेक्ट के साथ सिंगुलराइज किया गया है या किसी भी तरह, तो आपके वर्ब में एस लगता है। मिस्टर दिनकरन क्लाइम्ड ऑन बोर्ड। अब ये देखिए, उन्होंने एक रिक्शे को बोर्ड करा। एन ऑटो रिक्शा, इट इज ऑटो रिक्शा। नाउ द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड ऑटो रिक्शा begins with a vowel auto rickshaw therefore it should be preceded by the determiner n। vowel से pronunciation शुरू होता है किसी कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो या किसी भी तरह का नाउन, तो उच्चारण की वजह से उसके पहले हम n लेते हैं। अराउंड 7:30 PM had the people wanted to continue supporting this government they would obviously okay now हम ये जानते हैं पास प्रोबेबिलिटी हैड से, या अगर ये लिखा होता इफ द पीपल हैड वांटेड होता तो भी, WANTED हैड वांटेड होता तो भी। तो ये पास प्रोबेबिलिटी इफ और सब्जेक्ट और हैड से लिखा होता है या केवल हैड से, दोनों तरह से लेते। मैंने जानकारी आपको दी, तो हम आगे इंग्लिश में पास प्रोबेबिलिटी को हम वुड के संग हैव लगा के, अगर शुड होता है तो शुड के संग मे, माइट, कुड, ऑट टू, किसी के भी साथ हैव लगा करके थर्ड फॉर्म से प्रोबेबिलिटी को बताते हैं। इसलिए हमारा राइट आंसर है सी, जिसमें हमने करेक्शन किया। दे वुड हैव ऑब्वियसली वोटेड। पास प्रोबेबिलिटी का ये बहुत टेंटेटिव क्वेश्चन है, इसमें इफ के साथ पास प्रोबेबिलिटी इंग्लिश में बोली जाए या केवल हैड से। हर केस में पास प्रोबेबिलिटी वुड हैव, शुड हैव, मे हैव, कुड हैव, माइट हैव के संग थर्ड फॉर्म लेकर के किया जाता है यूज। द क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। इट इज अ यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सीलेंस। अगर आप ध्यान से देखें, है ना, क्योंकि यूनिवर्सिटी का उच्चारण हमने यहां पे देखा वॉवेल से नहीं हो रहा। उच्चारण यूनिवर्सिटी का, द बिगिनिंग साउंड ऑफ द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड यूनिवर्सिटी इज दिस
pronunciation of this word is ya, and in that case the right word is a. Fine. They have not had much time for social activities and I have not either. इस तरह से हमने राइट आंसर यहां पे लिया. देखिए ऑलरेडी वहां पे नॉट यूज कर दिया है नेगेटिव यूज, तो सेकंड में हम नॉट के संग फिर से क्लॉज जब ले रहे हैं तो ईदर से एक्सप्रेशन को कंप्लीट करते हैं. किसी पार्टी, किसी मिशन, किसी सेलिब्रेशन को हम सेट ऑफ करते हैं, शुरुआत करते हैं. जर्नी किसी तरह की, स्टार्ट ऑफ किसी गेम मैच वगैरह के बारे में आता है. वेंट ऑफ, लाइट, द लाइट हैज वेंट, द लाइट वेंट ऑफ यस्टरडे व्हेन यू केम, द लाइट हैज गॉन ऑफ. ही इज अ कट ऑफ फ्रॉम द सोसाइटी, अलूफ. डोंट पुल अ फास्ट वन ऑन मी एवरी टाइम. टू प्ले अ ट्रिक, किसी भी इडियम का एक सेट पैटर्न पे मीनिंग होता है, एंड इन दैट केस इट इज प्ले अ ट्रिक. टू ग्रीस द पाम, वेरी इजी क्वेश्चन. वी हैव नोन दिस सिंस द childhood that the answer is to bribe, रिश्वत देना. To turn turtle, everything to overturn, particularly a boat while sailing in the river or in any lake. उलट पलट जाना, खास करके वोट का ओवरटर्न हो जाना. आंसर इज सी. Action that is likely to make people very angry. Commensurable, proportional, that is the labor he did met with commensurable prices. So in that case it is proportional. Inflammable is particularly taken for things like things that are more of combustible, that create more of फायर, उनके लिए इनफ्लेमेबल लेते हैं. इसलिए हमारा जो यहां पे राइट वर्ड हो जाएगा कमेंट के लिए, स्टेटमेंट के लिए, लोगों की बातों के लिए, बिटर, एसर्बिक, काउस्टिक, प्रोवोकेटिव, दैट इज इन्फ्लेमेटरी. इन्फ्लेशनरी रिलेट्स टू द इन्फ्लेशन. तो इसका तो सेंटेंस की मीनिंग से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं. ओके. एन इम्बैलेंस ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स इन द मार्केट एंड दिस अवेलेबिलिटी ऑफ द लिक्विडिटी ऑफ मनी, इस बारे में इन्फ्लेशन आता है ये. तो हमारा राइट आंसर यहां पर हो जाएगा डी, लोगों की बातों वगैरह के लिए. इनफ्लेमेबल हम लेते हैं किसके लिए? ज्वलनशील पदार्थों वगैरह के लिए. कंबस्टिबल. A humorous drawing dealing with current events. In that case the right answer goes to be drawing. है कहा है तो drawing इस तरह का जो होता है उसके लिए हम right word लेते हैं, लेकिन humorous है इसलिए हम लेंगे cartoon. And a sketch is a kind of roughly drawn a picture, roughly drawn picture. Not very complete. An illustration is picture plus example plus illustration of the facts and data, elucidation. Expatiation. डिटेल में समझाना. A skit is a small drama, a short drama played especially in a parody. Parodized drama. An act of mercy killing, euthanasia. You have watched this movie recently that came recently, गुजारिश, जिसमें यूथेनेसिया के केस पे दिखाया गया है. सुसाइड इज किलिंग सेल्फ. इमोलेट इज टू बर्न somebody in much violent manner and kill.
particularly in order to sacrifice in public. Asphyxiate is choke, suffocate, दम घोट के मार डालना. Strangulate कर डालना. To have had a real good time. Okay, और उन्होंने कहा है they have had a real good time. So, their having had will be modified, verb will be modified with an adverb. Okay, और good time में good भी आप देख रहे हैं एडजेक्टिव है, जो दोनों तरफ सही क्वालिफायर मॉडिफायर होगा वो हो जाएगा a really good time, and therefore our answer would be C. इस have had को ध्यान से पढ़िए. This had is the main verb, we third, and this have is the auxiliary that denotes perfect tense, present perfect. Electricity has modernized. Modernized means coming up to time. जबकि हमारे सेंटेंस का जो इश्यू है वो इलेक्ट्रिसिटी के द मार्च ऑफ मॉडर्न इवेंट्स को एक लेवल पे केवल नहीं लाना बल्कि रिवोल्यूशनाइज कर देने का सेंस है सेंटेंस का. इन दैट केस इट वुड बी रिवोल्यूशनाइज. डेवलप और क्रिएट ऐसे भी आउट हो जाएंगे सेम मीनिंग में लगभग. और इंप्रूवमेंट की जरूरत क्यों है? क्योंकि मॉडर्नाइजेशन इज स्पोकन ऑफ द एज और टाइम ऑल टुगेदर. थॉट प्रोसेस, इवोल्यूशनरी चेंजेस के बारे में मॉडर्नाइजेशन आता है. हमारे जो सेंटेंस का टोन है वो मॉडर्न इवेंट्स को अवॉइड, मतलब दोनों का जो एक रिडंडेंसी अवॉइड करते हुए इलेक्ट्रिसिटी के रिवोल्यूशनाइज हो जाने से है. द सेल्स बॉय टोल्ड द कंज्यूमर नॉट टू टच द प्रोडक्ट्स ऑन डिस्प्ले. नाउ द कंज्यूमर विल बी पर्सन who has come. Before you consume a thing that you take from a counter or any shop or wherever, you are a customer to go there, and you are a consumer when you have bought the thing home or wherever and you use it. So consumer is somebody who consumes, uses. Remember, every buyer is not necessarily consumer. सो शॉपर को तो बिल्कुल ही कोई सोचेगा भी नहीं यहां पे लेने को. शॉपर तो वहां पे जो है वो जो मना करेगा वो होगा. सो योर आंसर इज सी. प्लीज मेक इट अ पॉइंट टू मेक इट अ पॉइंट दैट इज टू डेवलप योर ओन लेटर. हम कुछ भी कहीं को भेजते हैं, इसके संग एक दिशा, सेंड वर्ड के संग एक दिशा, सेंड टू मी, सेंड टू द हाउस, send to Lucknow, send to my address. वेक्टर जहां पे भी होता है, दिशा का क्रिया के संग जहां भी बोध होता है वहां TO2 लगाते हैं. सुनील एंड आई हेल्प टू सेल टिकट्स. अब यहां पे अंडरलाइन इन्होंने आई को करा हुआ है, तो सुनील भी डूअर है और जो इसमें पर्सन है वो भी डूअर है, तो दोनों एज अ डूअर. तो यहां पे चेंज आने का कोई मतलब ही नहीं है. आई के लिए दूसरा कोई डूअर तो होता नहीं है, आई खुद ही डूअर होता है अपने लिए, इसलिए यहां पे नो इंप्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड. दिस पैसेज इज अ ब्यूटीफुल अकाउंट ऑन हाउ टू वेल और एग्जैक्टली लर्न लैंग्वेज एंड व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ लर्निंग लैंग्वेज. बिसाइड्स दिस, it is a beautiful account on what should one do when one comes to learning. Like a child, like a very beginner learner of 9 months or 3 years child, one should develop the temperament and then one would be naturally inclined to learning language correctly. बहुत आसान सवाल. It is even born as listening. Listening उसका जन्म होने से पहले ही शुरू हो जाता है. बहुत सारे केसेस हमने पढ़े हैं और पैसेज में से लिसनिंग को आप अंडरलाइन कर देते हैं. One of the activities of a child before it is even born is listening. देखेगा तो है नहीं, अंडरस्टैंडिंग की तो बात बाद में आएगी. और ऐसे भी आप इसे अंडरलाइन कर सकते हैं क्वेश्चन में, पैराग्राफ में.
सिंस इट वॉज बोर्न, यहां देखिए, सिंस इट वॉज बोर्न मतलब जन्म लेने के एग्जैक्टली साथ के साथ वो सुनना शुरू करता है. अ बेबी डज नॉट स्पीक, लास्ट के लिए, अ बेबी डज नॉट स्पीक अंटिल इट इज 9 months ओल्ड, बट इट अंडरस्टैंड्स अ फ्यू वर्ड्स एट 6 months ऑफ एज. जब 6 महीने का हो जाता है तो इट हैज बीन लिसनिंग एवर सिंस इट वॉज बोर्न एंड इवन अ लिटिल बिफोर दैट. तो बिफोर दैट के सेंस से हम यह आंसर, यहां पे ये बिफोर दैट को जब हमने पढ़ा तो हम यहां से हिंट पाते हैं कि हमारा आंसर यहां पर बी होगा. इट इज नेसेसरी फॉर one to dash the language before he writes in that language. अब लिखने उखने से पहले यहां पे पढ़िए जहां पे मेरा पेन इस समय चल रहा है. A child speaks a language or languages much before he starts going to school. स्कूल वगैरह जाने से पहले वो लैंग्वेजेस को बोलना लगभग शुरू कर देता है. इसलिए हमारा राइट आंसर यहां पे है सी. अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन इन द पैसेज, मल्टीलिंगुअलिज्म मीन्स बहुत सारी भाषाओं को जानने का सीधा सीधा मतलब है मल्टी वर्ड से ही आप देख सकते हैं, इसको कहते हैं बहुत सारी भाषाएं बोलना. आंसर इज ए. और इसको हम ये देखिए, हम जहां मेरा मार्कर इस समय चल रहा है वहां से वी कॉल दिस मल्टीलिंगुअलिज्म. और इसके जस्ट थोड़ा सा पहले पढ़े, इन अ कंट्री अ चाइल्ड मे ग्रो अप स्पीकिंग मोर देन वन लैंग्वेज इफ दीज लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन द होम एंड इन द नेबरहुड. We call this multilingualism. Answer is very easy, A. A child has been ever since it was born. Very easy question. अभी हमने जो पहला आंसर लगाया था वहां से भी ये तय है. Ever since it was born, यहां पे पढ़ा था अभी हमने, यहां पे ever since it was born. Listening. To know a language, one must be able to. अब ये इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए. नेचुरली बोलने की बात पैसेज ने की है. ओके, देयरफॉर आवर आंसर स्पीक इट एज इजीली और नेचुरली. किसकी तरह से? एक बहुत छोटे से बच्चे की तरह. ओवरऑल जो पैसेज का टोन है ना, एक बहुत छोटे बच्चे की तरह से जो लर्निंग प्रोसेस होता है वैसे हमें अडॉप्ट करना होगा. ओके, केवल रीड करने से नहीं, केवल राइट करने से नहीं, लैंग्वेज के गाने से नहीं. पहले स्पीक इट करना होगा. And if not able to that, to read or write in will be not that easy. And a baby does not speak until it is 9 months. ये मैंने अभी इसे यहां पढ़ा, a baby does not speak. तो फिर इस सबसे बेबी के एग्जाम्पल को कोट करके और कंपैरेटिवली लेखक ने यहां समझाना चाहा कि एक बच्चे की तरह से नेचुरल तरीके से. अब 3 ईयर वाली बात को हम कहां से ले सकते हैं? मेरे पेन के साथ यहां आइए. टू नो अ लैंग्वेज then is first of all to be able to speak it as easily and naturally as a 3-year-old child. आंसर बहुत आसानी से हमने इसलिए ए लगाया.